ਲਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦ ਜਗਜੀਤ ਸਰ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਲਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੰਤ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਲੀਜੈਂਡਸ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਦੀ ਕਥਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਦੀ ਕਥਾ LPO 235 ਜੋ ਕਿ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਸ ਦੰਤ ਕਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਥਾ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਥਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜੋ ਮੂਲ ਕਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੰਤ ਕਥਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਲੂਣਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੋਨੋਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਉਸਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਹੈ ਉਸਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜੋਗੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਰਾਣੀ ਇੱਛਰਾਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਪੂਰਨ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਭਰਮ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੇਗਾ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁਭ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾ ਕੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੰਮੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਰਾਜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਵਜਾਤ ਯਾਨੀ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭੋਰਾ ਖੁਦਵਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੰਤ, ਮਹਾਤਮਾ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਪੂਰਨ, ਕੰਪਲੀਟ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦਾਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਯਾਨੀ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੂਰਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੰਬੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਰਾਜਾ ਚੰਬੇ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਭੋਲੇਪਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੰਬੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਮਰ ਢਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 50 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ 12 13 14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਰ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਮੇਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੇਮੇਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੂਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕਿ 12 13 14 15 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ, ਇੱਕ ਢੈਂਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲੜ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਾਣ ਦਾ ਵਾਰ ਢੂੰਡਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲੂਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਣ ਦੇ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਲੂਣਾ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਛੇਤੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ। परंतु क्योंकि वो पूर्ण है, क्योंकि उसनू जत सत दी, उसनू संजम की सिक्ख्या मिली है, क्योंकि साधुआं महात्मा जोगियां तो उसनू सिक्ख्या मिली है 12 साल लगातार, इस करके वो गृहस्थ विच जाण दा इच्छुक नहीं है। हुण राजे नू उसदे मंत्री समझाते भी 12 साल बाद निकले, इसनू असीं दुनिया देख लैण दिंदे आ। हुण जो राजा है वो कहंदा अपनी मातावां नू मिलो। माता
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ तेरी एक होर माता भी है, अपनी माता इच्छरा ਨੂੰ मिल, एक नवी माता तेरी रानी लूणा उसਨੂੰ मिल गया। क्योंकि राजे ਦਾ जो प्यार है और छोटी उम्र ਦੀ लूणा ਨਾਲ है, रानी इच्छरा ਨੂੰ ਉਸਨੇ अलग महल ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ है। ਹੁਣ जो पूरन है कथावां 'ਚ लिखिया भी इच्छरा ਨੂੰ मिलने ਜਾਂਦਾ, पर ਤੁਹਾਡੀ पुस्तक अनुसार लाजमी पुस्तक पंजाबी 11वीं जमात के अनुसार ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ लूणा ਨੂੰ मिलन ਜਾਂਦਾ है। लूणा भर जवान है, पति उसका बुढ़ा होने वाला है, इस करके वो जो भर जवान लूणा है ना, वो भर जवान 12 साल के पूरन ते मोहित हो जाती है। क्योंकि इस समय जो पूरन है उस जवान लूणा लिए योग प्रेमी हो सकता है। क्योंकि लूणा के ख्याल अनुसार जो पूरन है 12 साल का है, वो भर जवान हो रहा है, वो लूणा लेक योग प्रेमी हो सकता है। परंतु जो पूरन है क्योंकि उसनों चंगी सिक्ख्या मिली है, इस करके उसकी दृष्टि विच वो छोटी उम्र की जो लड़की है वो माँ ही है, क्योंकि उसके पिता की स्त्री है, इस करके उसनों माँ समझदा है। हुण इत्थे उसके अगे प्रेम निवेदन करती है, उसनों कहती है प्रेमी के रूप में देखती है, तो उसनों इजहार करती है प्रेम का। परंतु चंगे गुणों का भरिया होया पूरन अपनी माँ को इस कारण लिए इनकार कर दिंदा है, क्योंकि वो जवान है, क्योंकि राजा उसनों प्यार करता है, इस करके क्योंकि उसकी प्रेम दियां भावना के इजहार नूं पूरन ने ठोकर मारी, इस करके उसके दिल ते चोट लगती है, वो बदले की भावना गुस्से की भावना नाल भर जाती है, साजिश रचती है, अपने वाल खिलार लैंदी है, अपने गहने पुट के सुट दिंदी है, अपने कपड़े पाड़ लैंदी है, अपने पिंड ते झरीटां पा लैंदी है और बेहाल रूप धारण कर लैंदी है, कोप भवन में चली जाती है। जदों उस लूणा दे प्रेम का मारिया राजा आंदा है, तब राजा सलवान नूं शिकायत करती है भी तेरे पुत्र ने रिश्ते माँ के रिश्ते की मर्यादा भुली है, उसने सत्कार भुला के मेरे ते माड़ी नीयत पाई है, मेरे ते हाथ चुक्या है। इस करके जो यह झूठी कहानी है, लूणा के प्यार विच अन्ना होया राजा सलवान इसनूं स्वीकार कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं करता, किसी प्रकार की पुछ पड़ताल नहीं करता। और पूरन नूं अपने उस दिन जदों वो 12 साल बाद उस भोरे विचों बाहर आया, उस दिन ही उसकी मौत का पैगाम आ जाता है। पूरन जिहड़ा जलादां दे हवाले कर दिंदे है, जलाद उसनूं बड़े तरस की निगाह नाल देखते हैं और उसनूं मारदे नहीं, सगों उसके हाथ पैर वड्ड के उसनूं खूह विच सुट दिंदे। इत्थे पुस्तक विच लिखिया तुहाडी लाजमी पंजाबी विच भी जलादां नूं तरस आंदा, उसनूं मारदे नहीं, हाथ पैर वड्ड दिंदे, यानी गल उही है, हाथ पैर वड्डण दा मतलब बंदा मार दिता। हुण उस पूरन नूं हाथ पैर वड्ड के अन्ने खूह विच सुट दिंदे है ते लहू भरे कपड़े लिया के राजे नूं सबूत दे दिंदे है। राजे नूं अमन्ना हो जांदा, राजे नूं भरोसा कि मेरे पुत्र पूरन जिहड़ा कि दुराचारी है, जिहड़ा करैक्टर का माड़ा है, उसनूं मैं अपने राह तो परे करता। जिस पूरन ने आउंदे सार अपनी माँ ते मैली निगाह पाई, इस तरह जिहड़ा राजा है वो गम दा मारा प्यार विच अन्ना होया इस तरह का फैसला कर लैंदा है। हुण समा बीतदा है, उस समय जो गोरखनाथ जोगी है, कई जगह जोगी का नाम नहीं लिखा, पर तुहाडी पुस्तक विच लिखा है भी गोरखनाथ जोगी की टोली उस खूह विच आंदे, जिहड़ा कि उस राजे ने अपने पुत्र दे प्यार विच बहुत सुंदर बाग लगवाया। हुण क्योंकि पुत्र दुराचारी हो गया तो पुत्र नूं उसे बाग दे खूह विच सुट्टिया, इस करके लोग इस बाग विच नहीं जाते, वो बाग उजाड़ हो गया। इस करके उस उजाड़ बाग में जोगी आके ठहरते हैं, खूह विचों पुकार आती है। परंतु दूजी जगह कथा विच लिखा कादर यार दी भी खूह विच जिहड़े जोगी जो पानी लैण जाते हैं, उत्थे एक लोथ पई है पानी के अंदर, तो वो जो लोथ है उस तो डर के जोगी वापस आ जाता है। हुण कथा इत्थे थोड़ी जी भिन्न हैगी है भी गोरखनाथ की टोली जो खूह विचों पुकार सुनती है उस पूरन की, तां वो खूह के अंदरों सारी हड्ड बीती सुणांदा है, गोरखनाथ भी सुणांदा है। हुण क्योंकि इत्थे परख होनी है, क्योंकि असी गल की है भी दंत कथावां विच जो दैवी या चमत्कारी अंश भी हुंदा है, इस करके जो गोरखनाथ है वह पूरन की परीक्षा करता है, इस तरह की परख करता है भी एक सूत का कच्चा धागा खूह के अंदर लटकांदा है, कहता जे तेरी कहानी सच्ची है, तू जत सत दा पूरा है, इस कच्चे धागे नूं फड़ के उपर आ जा। हुण जो पूरन है क्योंकि वो जती सती है, क्योंकि बड़ा तेजवान है, हुण वो उस कच्चे सूत्र के धागे नूं फड़ के और खूह के उत्ते आ जाता है। जितने जोगी जितने उत्थे सारे उसकी जय जयकार करते, उसके सत नूं देख के, उसके तेज नूं देख के, उसकी पक्याई नूं, उसके बलिदान इस करके 12 साल का बच्चा अपने करैक्टर नूं, अपने जत सत नूं कायम रखता है। वो मरना कबूल करता है, पर अपनी सौतेली अपनी मतरेई माँ के प्यार निवेदन नूं वो ठुकरा दिंदा, भावें उसनूं मौत की सज़ा भी मिल जाती है अपने पिता वालों ही। हुण इत्थे जय जयकार हुंदी है, जो गोरखनाथ है अपने तप बल दे नाल उसनूं साबित कर दिंदा, उसदे हत्थ पैर दोबारा 9 बरन हो जाते हैं। हुण उस पहले तो ही पूर्ण होए, पहले तो ही चंडे होए, यानी अपने आप विच सारे गुणां नाल भरपूर उस पूरन नूं फिर जोग मत की सिक्खा दिंदे है, दीख्या दे के जोगी बना के अपने नाल ही लै जांदे है। जदों
गोरखनाथ के राही उस पूरन भगत की पूरन जोगी की सिक्ख्या मिलती है, दीख्या मिलती है, तो फिर अपने आप च पहले ही संपूर्ण है, उसनों होर दीख्या मिल के वो होर चंगा जोगी करामाती जोगी बन जाता है। हुण उसकी परख होंदी है, हुंदा कि भी नाल दे राज विच राणी सुंदरा राज करती है। पहले परख हो चुकी है भी माँ की सुंदरता, माँ की जो सुंदरता का जो प्रणय निवेदन है, प्यार का जो बेनती है, वो ठुकरा के अपनी मौत कबूल करता है। दूजी परीक्षा होने वाली भी राणी सुंदरा की परख जोगियां लिए यह परख होंदी है भी जेड़ा जोगी राणी सुंदरा की सुंदरता के मोह पाश चों बच के साबित आ जाएगा वो पूरन जोगी है, जेड़ा डुल गया वो उत्थे जोगा ही रह गया। हुण राणी सुंदरा के महल विच वो जदों भीखिया मंगण जांदा है तो उसका रूप उसका तेज देख के और राणी सुंदरा दियां दासियां और राणी सुंदरा खुद मोहित हो जाती है। उसके मोह विच मोह पाश विच बजी हुई मोतियां का थाल अगे लैके पेश होंदी सी। उसनूं पता ही नहीं क्योंकि 12 साल के भोरे विच रहे, फिर उसनूं मौत की सज़ा हो गई, उस तो बाद जोगमत की सिक्ख्या, इस करके उसने राज दे हीरे मोती इस तरह का कोई ऐश्वर्य जेड़ा है वो नहीं देखा। हुण अपनी झोली विच मोतियां का थाल पवा के अपने गुरु गोरख को लांदा है, पर गुरु गोरख मना कर दिंदा कि यह साडे काम की वस्त नहीं, तू भोजन लैके आ। वो इन्ना भोला है पूरननाथ जोगी कि वो अपनी झोली उन्हां मोतियां दे थाल नाल भरी हुई वो वापस राणी सुंदरा कोल जांदा है और कहता भी गुरु ने हथी भोजन तैयार करके लियाण नूं कहा है। हुण राणी सुंदरा उसके प्रेम विच भिजी हुई, उसके लिए समर्पित हुई, आप खुद हथी भोजन तैयार करती है। बड़े प्यार बड़े सत्कार नाल अपने सिर ते चक के साधुआं दी टोली कोल जांदी है, गोरखनाथ दी टोली विच जांदी है और बड़े प्यार ते शरधा नाल सब नूं भोजन छकांदी है। क्योंकि राणी है, क्योंकि समर्थवान है, उसकी सेवा दे के सारे जोगी धन धन कर जाते हैं। और जो गोरखनाथ उसनूं वर मंगण लई कहंदा, हुण वर दे तौर ते वो पूरन की मंग करदी भी जो तुहाडे कोल बालड़ा है, यह जो जोगी पूरननाथ है 12 साल का, इसनूं मैनूं दे दिओ, इसनूं अपना पति मन के इसकी सेवा करांगी, क्योंकि वो वचन विच बज्झा है और पूरन अपने आप जी पूरन है। हुण जो गुरु गोरखनाथ है वो फिर पूरन नूं सुंदरा नूं दान दे दिंदा है। हुण पूरन नूं लैके जो सुंदरा अपने महली आंदी है उसनूं अपने नाल ग्रस्त करन दा निवेदन करदी है। सारी रात जो पूरन है वो समाधि लग एक टक पलंग ते बैठा रहता है और जो सुंदरा उसके चरणों में बैठी उसके रूप नूं निहारदी है, पूरी तरह समर्पित है। सवेर हुंदी है वो कहता भी मैं तेरे इस कैद विच नहीं रह सकता, वो बाहर जाने का बहाना बना के महलों तो निकलता है। इत्थे यह लिखा है भी राणी सुंदरा तो आग्ञा लैके चला जाता है, पर जो मूल किस्सा उस लिखा है भी जो पूरन है जो महलों तो निकल के जाता है अपने गुरु दे कोल, राणी सुंदरा देखती है वो एकदम उसका दिल टुटता है। उसने इन्ना कुछ किया इस प्यारे जोगी लई, वो ठोकर मार के जा रहा है। जिहड़ी राणी सुंदरा है महल की छत तो छाल मार के खुदकशी कर लैंदी है। हुण दूजी प्रीख्या विचों पूरन हो गया क्योंकि उसनूं राजपाट राणी सुंदरता का रूप वो भी डुला नहीं सकिया, माँ की सुंदरता का रूप भी नहीं डुला सकिया। इस तरह जो गोरखनाथ का चेला है पूरन भगत वो दूजी प्रीख्या विच पास हो जाता है। हुण सुंदरा का त्याग करके जदों जोगी पूरननाथ वापस आता है, गुरु बड़ा प्रभावित होता है। उसनूं कहता हुण तू पूरन है, हुण तू अपने आप च करामातां नाल भी पूरन है, इस करके तू जा और जोग मत का प्रचार कर। सब तो पहला फिर वो पूरन जोगी आशीर्वाद प्राप्त करके अपने पिता दे देश सियालकोट आ जाता है। हुण राजे नूं नहीं पता क्योंकि राजा तो अपने भाणे अपने पुत्र नूं मरवा चुका है, उसके खून भरे लहू नाल लिबड़े कपड़े भी सबूत के तौर पर देख चुका है। इस करके उसनूं बड़ा दुख है, मन च बड़ा कलेश है, बड़े चिर बाद पुत्र होया, वो भी इस तरह का दुराचारी पुत्र होया, इस करके उदास है। दूजे पासे राणी लूणा की सुंदरता ढलती जाती है, घर कोई औलाद नहीं, इस करके राजा राणी हुण जे राणी इच्छरा है क्योंकि उसका एकमात्र पुत्र है, उसनूं राजे ने मौत की सज़ा दे दी है। उसकी याद विच बेहाल हो के रो के राणी इच्छरा दीयां अखां जिहड़ियां चलियां जांदियां, अन्नी हो जाती है, अपने महलों में बड़ा भटकती है, अपने महलों में बड़ा रोंदी है। और राजा उधर निम्मो चूणा उधर उदास है क्योंकि इसका एकमात्र पुत्र है जो कि माड़ा निकलिया। हुण राणी लूणा दे मन विच भेद की गल है, किसनों दस नहीं सकती, इस करके वह भी उदास है। हुण दोवें जने जो सुनते हैं उस समय तक पूरन की बड़ी प्रसिद्धि हो चुकी है। जो सुनते हैं कि साडे सियालकोट विच कोई जोगी आया जिस दे वापस आण दे वो जो खूह वाला बाग सुक सड़ गया सीगा, वो एकदम उसके चरण पैंदे ही हरिया भरिया हो गया। वो फटाफट
ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੋਗੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਾਰ ਲੈਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕਾ ਬਾਗ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਨੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਇਛਰਾ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਵਾਇਆ ਸੁੱਕਾ ਬਾਗ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਹਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਟੈਂਦੀ ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਮੰਨਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਜੋਗੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬੜਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਪ ਬਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਇਛਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ और बड़ा सदाचारी है, बड़ा नेक गुणा वाला है और बड़ा त्यागी और बड़ा बलिदानी है, उसनों नहीं पता। हुण पूरन उसनों कहता भी तुहाडे घर ते औलाद सी, तुसीं काहनूं हुण दोबारा वरदान मंगदे हो। परंतु वो कहता औलाद तां सी परंतु वो ठीक नहीं सी, सारी गल दसदा है। हुण वो कहंदा भी जेकर लूणा अपना दोष कबूल कर लवे भी असली गल की है दस देवे तां इस दे घर औलाद होवेगी। हुण राजा सलमान नूं तां पता ही नहीं, सारा भेद राणी लूणा के मन में है। हुण राणी लूणा अपना दोष कबूल कर लैंदी है, सच्चा पछतावा करती है, राजा तलवार कढ़ लैंदा है, पर जो पूरन जोगी है उसनूं रोक लैंदा है और उसनूं खिमा कर दिंदा है। हुण ਉਹ ਇੱਕ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਲੂਣਾ ਇਸ ਚੌਲ ਨੂੰ ਖਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਮਹਾਬਲੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਬਲੀ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸੰਭਾਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। परंतु ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ नहीं, मेरा जो कारज है वो हुण पूरा हो गया, क्योंकि मैं जोगी हाँ, क्योंकि तुहाडे भाणे तां मैं मर चुकिया, इस करके मैं सन्यासी हाँ, जोगी हाँ, महात्मा। हुण मैं राज दा ऐश्वर्य उसनूं कबूल नहीं कर सकदा जिस तो मैनूं कढ़िया गया है या जिहड़ा कि कुदरत के तौर पर मेरे तो खोया गया, मैं उसनूं स्वीकार नहीं कर सकदा। इस करके वो त्यागी है। राजे सलवान की बेनती ठुकरा दिंदा है, क्योंकि कहना मैं त्यागी हाँ, मैं माया के बंधनां विच नहीं आ सकदा। बहुतियां बेनतियां करन ते हुण पूरन यह वाक बोलदा है भी जोगी चलदे भले और नगर वसदे भले। इस तरह यह जो दंत कथा है कादर यार की लिखी हुई, इसका थोड़ा बहुत चेंज होया रूप तुहाडी पुस्तक विच है, जिस विच असीं देखिया भी जो साडी LPO 235 235 सी उसे सारी कथा सी। उस स्टोरी नूं भी तुसीं उस वीडियो नूं भी देख के इस स्टोरी नूं होर पक्का कर सकते हो। इस दे बाद असीं करदे हां हुण प्रश्न उत्तर। पुरानी पुस्तक विच पेज नंबर है 100 नंबर पेज है। उसका पहला प्रश्न है, राजा सलवान ने अपने पुत्र पूरन नूं भोरे विच रखण दा हुक्म क्यों दिता? जदों बड़े सालों बाद पूरन दा जन्म होया तां राज महल दे ज्योतिषियां ने राजे सलवान नूं वहम पा दिता कि जेकर 12 साल तो पहले अपने पुत्र दा मूँह देखेगा तो तेरे जीवन लिए अशुभ होवेगा। किसे अणहोणी तो डरदे मारे राजे सलवान ने अपने नवें जमे पुत्र पूरन नूं 12 साल भोरे विच रखण दा हुक्म दे दिता तां जो 12 साल अपने पुत्र दा मूँह ना देख सके। दूसरा प्रश्न है, लूणा ने पूरन उत्ते झूठी तोहमत क्यों लाई? जदों छोटी उम्र की राणी लूणा ने अपने हाण दे पूरन नूं वेख्या, उसदे रूप उत्ते उसदे तेज उत्ते मोहित हो गई, तां फिर उसने उसनूं प्यार की बेनती की। जद सद दे पक्के पूरन ने जदों अपनी मां नूं इस गल्लों इनकार कर दिता तां उसनूं इस गल दा बड़ा बुरा मनिया, क्योंकि अपनी इच्छा अनुसार अपने पुत्र नूं अपने प्रेमी के रूप में देखना चाहती सी। जदों उसने मना कर दिता तां उसकी अणख नूं बड़ी गहरी सट लगी। उसने पूरन तो बदला लैण लई उसने पूरन ते झूठी तोहमत लाई कि उसकी नीयत मैली हो गई है। तीसरा प्रश्न है, पूरन गोरखनाथ जोगी के संपर्क विच किवें आया? जदों गोरखनाथ की टोली पूरन दे बाग विच पहुंची, जिस खूह उत्ते पूरन नूं
ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਜੋਗੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਸੂਤ ਦਾ ਧਾਗਾ ਉਸ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਤ ਸੱਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਪੂਰਨ ਜੋਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਪੂਰਨ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਧਾਗਾ ਫੜ ਕੇ ਸੂਤ ਦਾ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਜੱਤ ਸੱਦ ਤੋਂ ਜੋ ਗੋਰਖਨਾਥ ਸੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸੱਸਾ ਹੈ ਸੁੰਦਰਾਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਸੁੰਦਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਜੋਗੀ ਉਸ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਤੇਜ ਔਰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਣੀ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਥਾਲ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਪਰੰਤੂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਨੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦ ਹੱਥੀਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਟੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ। ਹਾਹਾ ਹੈ ਪੰਜਵਾਂ, ਲੂਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? बड़े साल संतान ना होने करके राजा सलवान और छोटी रानी लूणा जदों बहुत निराश हो गए, बड़े उदास हो गए, तो उन्होंने पूरन जोगी की प्रशंसा सुनी, उसकी बहुत महिमा सुनी। तो उस तरह पुत्र का वर लैन लई उसके कोल आए। जदों पूरन ने उन्होंने कहा तुहाडे कोल पहला भी पुत्र सी, तुसीं पुत्र की दात क्यों मंग रहे हो? तो उन्होंने पहला तो इनकार किया, पहला तो अपनी गल तो मुकरे, परंतु पुत्र की दात लैन लई फिर लूणा नूं अपना गुनाह कबूल करना पिया। उसने सच्चा पछतावा किया। कक्का प्रश्न है, पूरन भगत ने राजा सलवान वालों राज भाग देने की पेशकश क्यों प्रवान की? असीं कहांगे भी पूरन जोगी अपने आप विच पूरन त्यागी सी, उसनूं मोह माया नाल राज पाट नाल कोई मोह नहीं सी, क्योंकि पहला ही उसने हालात करके अपना घर, अपना राजपाट, अपना परिवार छड्डिया सी। जदों राजे ने उसनूं दोबारा राजपाट की पेशकश की तो उसने उस विच कोई रुचि नहीं दिखाई ते उसने इस बंधन नूं स्वीकार ना करन दा अपना फैसला राजे सलवान नूं सुना दिता। लो जी, यह सी पूरन भगत दा किस्सा ते प्रश्न उत्तर। हुण असी राजा रसालू दे वीडियो विच अगे मिलांगे। जे अजे तक तुसी इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता, छेती तो छेती सबसक्राइब करो, क्योंकि आने वालियां तुहाडे सिलेबस दीयां वीडियो तुहानूं छेती समय सिर मिल जाण, तुहाडा सिलेबस सही समय पूरा हो जाए। इस गल इस चैनल नूं सबसक्राइब करो, बैल आइकन दबाओ और अपनी असीसां बख्शो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।